یہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ یا قہارو، آج روحانی آپریشن میں یا قہار پڑھا رہا تھا، اور اندر ایک میرے احساس تھا. وہ احساس یہ تھا کہ یا اللہ، یہ سارے کے سارے بے بس اور میں ان سے بڑا بے بس. یہاں تسبیح خانے میں ایک فقیر ہے، وہ دم کرتا ہے، دعا کرتا ہے، روحانی آپریشن ہے. تو یا اللہ، اگر میں ہی سب کچھ تھا، پھر تیرا نام پکارنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر میں تو لوگوں کہتا یا تارے کو، یا تارے کو پڑھو زیرا سورے، پھر لوگ ضربیں لگاتے. یا کہارو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے بے بس ہیں، مجبور ہیں، عاجز ہیں، بے حیثیت ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. تیرا نام ہے تو ہمارے پاس کچھ ہے، اور تیرا نام ختم ہو جائے تو ہماری کوئی حیثیت، کوئی وقار، بالکل کچھ بھی نہیں، زیرو ہیں. اور تیرا نام ہے تو ہم ہیرو ہیں. یا کہارو پڑھنے والا اصل میں ایسا ہے جیسے کہ ابھی بالکل کچھ بھی نہیں تھا، ہاتھ میں چھڑی بھی نہیں تھی، ہاتھ میں چھڑی بھی نہیں تھی، اور پل میں ہاتھ میں ایسی ہتھیار، ایسے تلوار آئی کہ دنیا ڈر کے ایک طرف ہو. پھر عمل کو جس طاقت سے پڑھا جائے گا، اور جتنا طاقتور ہتھیار ہوگا، ویپن ہوگا، ہتھیار ہوگا، اتنا آگے دہشت بھی ہوگی، خوف بھی ہوگا، اور اس کی بات بھی مانی جائے. ہتھیار جتنا طاقتور، اللہ کا نام طاقتور، اس کا یقین کیا طاقتور ہے. ہجڑے بیٹھے تھے، انہوں نے دو نے کہا کہ سنا ہے ڈاکے ڈالتے ہیں بڑا مال ہوتا ہے. اس نے کہا آئیں آج ڈاکہ ڈالتے ہیں. انہوں نے نا کیا کیا، گنے کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، اس کی نوک بنی ہوئی تھی. اس نے کہا یہ خنجر ہے. ایک نے بھی گنے کا چھلکا اٹھایا، دوسرے بھی نے اٹھایا، اور بندہ جا رہا تھا، اس کو کہنے نہیں ایسے پیسے کاٹ. اس نے دیکھا نا کہ گنے کا چھلکا ہے اور آگے ہیں مخصوص لوگ. تو اس نے اس دور میں، جب کہ اس نے دینا تھا 1000-2000، اس نے آنا دو آنے دے دیا. آنا دو آنے جب اس نے دیا تو اس نے کہا یہ کیا. اس نے کہا جتنا طاقتور تمہارا ہتھیار ہے تو چوری کا مال بھی تو اتنا طاقتور ہوتا ہے. تو مجھے گنوں کے چھلکوں سے مجھ سے ڈاکہ ڈالتے ہو. پھر تمہارا لہجہ کیسے ہے، تمہارا انداز کیسے ہے. یا کہارو ہمارے پاس ہو اور یا کہارو کا یقین نہ ہو. یا کہارو کی طاقت ہے، پر اس طاقت کا استحضار، پورا جذبہ نہ ہو، اس کا پورا جذبہ نہ ہو. پھر کہیں کہ فائدہ نہیں ہوا. تیرے لینے میں کمی ہے، تیرے مانگنے میں کمی ہے، میرے جذبے میں کمی ہے، اور میری کیفیات میں کمی ہے. رب کی عطا میں کمی نہیں ہے، اس کی کریمی میں کمی نہیں ہے، میری لینے میں کمی ہے، میرے کرنے میں کمی ہے. اور یہ وظیفہ صدیوں سے اللہ کی محبت کو مانگنے کے لیے، اللہ کے تعلق کو منوانے کے لیے، اللہ کے ساتھ دوستی لگانے کے لیے صدیوں سے آزموتا ہے، یقین کے ساتھ، پورے جذبوں کے ساتھ. اور یہ وہ وظیفہ ہے جس وظیفے کے ساتھ ان فرشتوں کا تعلق ہے جن کے ذمے اللہ نے کائنات کے پانی کا نظام دیا ہے. کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا میکائیل کو میں نے پانی کا نظام، بارشوں پہ سنا آپ نے، اسرافیل کو میں نے سور پھونکنے کے لیے، اسرائیل کو روح قبض کرنے کے لیے، موت دینے کے لیے، جبرائیل کو انبیاء کی خدمت کے لیے یا بڑی خدمت کے لیے. میرا اللہ تو سارا کچھ خود کر سکتا ہے، کر سکتا تھا، کرتا ہے. تو اللہ نے فرشتوں کو کیوں دی ہے یہ خدمت؟ اس کے دینے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ بندار بتا رہا ہے کہ میں نے کائنات کا نظام اس طرح چلانا ہے. یا کہاروں کے جو موکلات اور فرشتے ہیں، ان کی ذمہ داری کائنات کے پانی کے ساتھ ہے. ہم سمندروں، دریاؤں، نہروں اور گہرے پانیوں کو یا عام پانی کو صرف پانی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ عام پانی اور پانی نہیں ہے.
اس کے نیچے بھی کائنات ہے، اس کے نیچے بھی دنیا ہے۔ انگریز تو آپ پانی کے نیچے کی دنیا تلاش کر رہا ہے، پانی کے نیچے کے خزانے تلاش کر رہا ہے، پانی کے نیچے ایک پورا نظام ہے، ایک مخلوق ہے جس کا صدیوں سے ہمیں پیغام ملا تھا، ان کو اٹھا دیں۔ اس کے بعد بھی سوئیں گے، آپ ذرا سوئی تھوڑی سی ہاتھ میں رکھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ جن کے ذمے سنیں، جو کائنات کو جانتے ہیں، اب وہ انگریز بہت زیادہ سمندر کے نیچے کی دنیا کو جاننے کے لیے فکر مند ہے، اور انہوں نے لکھا ہے، آپ اٹھا کے نیٹ کی دنیا کو دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ پانی کے نیچے کوئی ایک اور مخلوق ہے، مچھلیاں ہیں اور چیزیں ہیں، سب کچھ ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، حج پہ جا رہا تھا، بحری جہاز کا سفر تھا، دیکھا کہ ایک جزیرے پہ ایک مچھلی آئی، اس نے اونٹ کھڑا تھا، سارے اونٹ کو نگل لیا۔ لیکن اس کے بعد اگلا منظر میں نے اور دیکھا، وہ یہ دیکھا ایک اور مچھلی آئی، اس نے اس مچھلی کو نگل دیا۔ اس مچھلی نے سارا اونٹ نگلا اور اس مچھلی نے اسی کو نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیسے کھلائے گا؟ یا اللہ دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کرو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے مچھلی سمندر کی مخلوق، جنات کو، انسانوں کو، ساری مخلوق کو کھانوں پہ لگا دی، اور اللہ نے اس کھانے کو محفوظ رکھا، خراب نہیں ہوا۔ سالوں مہینوں کھانے پکتے رہے، پکتے رہے، پکتے رہے، کھانے کے پہاڑ بن گئے۔ تو اللہ سے عرض کیا کہ اللہ اپنی مخلوق بھیج۔ تو اللہ نے ایک مچھلی بھیجی، اس نے وہ کھانا کھایا اور کہا کہ سلیمان آج بھوکا مار دیا، اللہ مجھے روزانہ ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے، 3 لقمے کھلاتا ہے۔ سلیمان آج بھوکا مار دیا، اللہ روزانہ مجھے ایسے 3 لقمے، یہ تو 1 لقمہ ہوا، باقی 2 کا کیا بنے گا؟ پانی کے نیچے ایک نظام ہے، ایک کائنات ہے، ایک مخلوق ہے، اور وہ رہتی ہے، وہ بستی ہے پانی کے نیچے، وہ رہتی ہے، وہ بستی ہے، اور اس کی ایک کائنات میں حقیقت ہے، سچائی ہے۔ جو پانی کے نیچے مخلوق ہے وہ رہتی اور بستی ہے اور سچائی ہے۔ یا کہاروں کے عمل کے ساتھ پانی کو کیوں جوڑا ہے کہ پانی میں پاؤں ڈبو کے، یا ٹب کا پانی ہو، نہر کا پانی ہو، دریا کا ہو، سمندر کا ہو، تالاب کا ہو، جھیل کا ہو، ندی کا ہو، کوئی بہتا پاک پانی، آخر کیوں ہے؟ اس کے ساتھ اللہ نے جو فرشتے جوڑے ہیں، ہر مخلوق کے ساتھ، ہر آیت کے ساتھ، ہر وظیفے کے ساتھ، ہر تسبیح کے ساتھ، ہر اللہ کے نام کے ساتھ، ہر آیت کے ساتھ، اللہ پاک جل شانہ نے فرشتوں کو جوڑا ہے، فرشتوں کو جوڑا، اور فرشتے جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، فرشتے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ پاک جب بندہ وہ نام پڑھتا ہے، وہ تسبیح پڑھتا ہے، تو اللہ پاک جل شانہ اس تسبیح اور نام کی وجہ سے، اس تسبیح نام کی وجہ سے اس فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرشتے جاؤ اس بندے کی خدمت کرو، اور فرشتے خدمت پہ آ جاتے ہیں۔ اور جس کو میں آپ کہتے ہیں، ہم نے یا کہارو پڑھا تھا، ہمارا جادو ٹوٹ گیا، بندش ٹوٹ گئی، مشکل ٹل گئی، پریشانی دور ہو گئی، سختیاں ختم ہو گئیں، راحتیں مل گئیں، عافیتیں مل گئیں، بندہ پھر یہ کہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے امر سے اس بندے کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے اس نام یا کہاروں کو پورے وجدان سے، پوری توجہ سے، پوری طاقت سے، پورے دھیان سے اور پورے جذبے سے پڑھتا ہے، پورے جذبے سے پڑھتا ہے۔ ہماری روحانیت اور عملیات کی دنیا میں کیوں ہے کہ 40 دن ایک مکان، ایک زمان، ایک کسی کمرے، کسی جگہ میں
40 दिन कैद हो जा, या 70 दिन, या 90 दिन, या 123 दिन, या 129 दिन कैद हो जा। 2 चादरें पहन, 2 चादरें पहन, और उन 2 चादरों को पहन के, उन 2 चादरों को पहन के, उन 2 चादरों को तू रूखी सूखी खा, हत्ता कि तेरे पास जो सब्जी पकाए उसका चाकू भी लोहे का ना हो। लकड़ी की, मिट्टी की हंडिया में सब्जी पका, गोश्त तो वैसे ही नहीं खाना, उसमें मसाले नहीं डालने, वो बिल्कुल बेजायका सब्जी हो, जिसको कहते हैं तर्के लज्जात, लज्जतों को छोड़ देना। क्यों ये पाबंदियां क्यों हैं? इन पाबंदियों की बुनियादी वजह, जब इंसान लज्जतों को हासिल करता है तो अल्लाह के नाम की लज्जत नहीं पा सकता। 2 लज्जतें हमेशा जमा नहीं होती, 2 लज्जतें, एक अल्लाह के नाम की लज्जत, एक दुनिया की चीजों की लज्जत। हाँ, कोई बंदा मेहनत करके, जान मार के एक मकाम और मर्तबे तक पहुंचता है, फिर दुनिया की सारी लज्जतें उसे मुतासिर नहीं करती, वो अल्लाह की लज्जत में ऐसा खो जाता है। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक खातून आई, अपना बच्चा छोड़ गई कि बाबा जी इसको अल्लाह अल्लाह सिखा दे। आपने फरमाया ठीक है। कुछ अरसे के बाद आई, देखा तो वो सूखी रोटी और नमक मरच से खा रहा, और बाबा जी भुने हुए मुर्ग खा रहे हैं। कहने लगी अल्लाह वाले ऐसे होते हैं, अल्लाह वाले ऐसे होते हैं। आप जो खा रहे हैं मेरे बेटे को तो वो आप खिला ही नहीं रहे, आप जो खा रहे हैं मेरे बेटे को तो वो नहीं खिला रहे। तो आपने फरमाया था बीबी, मैंने अपनी मंजिलें ऐसे शुरू की थी जैसे तेरे बेटे ने शुरू की हैं। मुर्शिद अल्लाह का नाम देते थे और लज्जतें छीन लेते थे, फरमाते थे 2 लज्जतें जमा नहीं होती। फिर एक दफा मेरे मुर्शिद ने मुझे आजमाने के लिए एक तरफ तरबूज रख दिया और एक तरफ तुम्मा रख दिया, कौड़ तुम्मा, हंजल, कड़वा, बिल्कुल कड़वा कड़वा, और उसकी शक्ल ऐसे बना दी कि वो खरबूजा नजर आता था, और मैंने सबसे पहले उसी को खाया, और मेरे अंदर कड़वाहट की कैफियत, मेरे मुर्शिद मेरी आंखें चेहरे को देख रहे थे, कुछ महसूस न हुई, मैं सारा खा गया। तो उसके बाद फिर मैं तरबूज खा गया। तो उन्होंने पूछा इनमें मीठा कौन था? तो मैंने कहा जो पहले वाला था उसका जायका अच्छा था। कहा तुझे पता नहीं है कि वो बहुत कड़वा था? तो वो तो हंजल तुम्मा, कौड़ तुम्मा वो था। कहा नहीं, मुझे खबर नहीं कि वो ये था। तो फरमाने लगे बस आज के बाद तू मेरे साथ मेरे दस्तरखान पर बैठेगा, आज के बाद तू मेरे साथ मेरे दस्तरखान पे बैठेगा। तुझे मैंने बहुत अरसा तर्क लज्जात दी, सारी लज्जतें, सारी नेमतें, सारी चीजें तुझसे छुड़वा दी। बाज़-औक़ात अल्लाह पाक का निजाम होता है, अल्लाह किसी बंदे को हादसे की तकदीर में कर देता है, फिर मौलिज कहते हैं कि आपको बेड रेस्ट है, आपको रेस्ट करना है, इस हिस्से को ज्यादा हरकत नहीं देनी। इसमें भी एक बात सुना दूं, फरमाया किसी को कोई बीमारी, हादसा, तकलीफ में अगर अल्लाह ने बिस्तर के साथ लगा दिया है तो वो समझ ले मेरा अल्लाह कहता है तुझे मैं यकसुई दे रहा हूं, तुझे वक्त दे रहा हूं, तुझे फुर्सत दे रहा हूं। इस यकसुई और वक्त और फुर्सत में तो मुझे कितना याद करता है। अगर तो बंदा अल्लाह को याद, जिक्र, आमाल की ताकत बढ़ा देता है, अल्लाह बीमारी को मुख्तसर कर देते हैं। और अगर बंदा बीमारी की तकलीफ को चाहता है कि वैसे रहे तो फिर अल्लाह पाक की तरफ से उसकी तवज्जो हट जाती है, ध्यान हट जाता है। तो फिर अल्लाह कहता है ठीक है, तू मेरी तरफ तवज्जो नहीं करता, मैं तेरी तरफ तवज्जो नहीं करता, मैं तुझे तेरी तकलीफ में घुला दूंगा, परेशान कर दूंगा और तुझे सारी उम्र इन्हीं तकलीफों में रखूंगा। अल्लाह पाक का नाम जिंदगी में काम आता है, अल्लाह का नाम जिंदगी में हमेशा साथ देता है, जिंदगी में साथ देता है। मुसीबतें, तकलीफें, हालात, सख्तियां, तंगियां,
नाकामियां, जमाने की ठोकरें, ये आती उन लोगों के लिए हैं जिनको अल्लाह अपने करीब करना चाहता है। अगर अल्लाह ने फिरौन को अपने करीब करना होता, लिखा है कि वो अजली शकी और बदबख्त था, उसकी इतनी लंबी उम्र, आज तक नजला, जुकाम, बुखार, छींक भी नहीं आई थी। और एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती थी। एक चोगा है और एक असा है और एक लकड़ी का कटोरा प्याला है, यही उनकी जिंदगी है। और एक तरफ फिरौन का निजाम, जिसे मैं आंखों से देख के आया हूं। हैबत होती है कि ये बना कैसे था, हुआ कैसे था। आज सैकड़ों नहीं, हजारों साल गुजर गए, वो फिरौन का निजाम था। मैं आंखों से देख के एक एक जगह आया, एक एक कोने में पहुंचा हूं, एक एक जगह में पहुंचा हूं। वो निजाम। और एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम। याद रखिएगा, अगर किसी से अल्लाह ने दुनिया मुख्तसर कर दी है और किसी के साथ अल्लाह ने दुनिया थोड़ी कर दी है, या दुनिया में आजमाइश दर आजमाइश है, वो ये ना समझे कि मैं दुनिया का जलील तरीन इंसान हूं। वो ये समझे कि मेरी निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ है, मेरी निस्बत फिरौन के साथ नहीं है। और किसी को अल्लाह ने अगर दुनिया बहुत ज्यादा दे दी है, माल बहुत ज्यादा दे दिया, चीजें बहुत ज्यादा दे दी, पर अपनी जात की तरफ रुजू भी दे दिया, अपनी जात की तरफ ताल्लुक भी दे दिया, अपनी जात से मांगने, गिड़गिड़ाने और भीख और भिकारी मांगने वाला भी बना दिया है, तो समझ ले कि मेरा अल्लाह मुझसे इस माल पे राजी है, मुझसे इस माल पे राजी है। और किसी को अल्लाह ने बीमारियां, दुख, तकलीफें, मुकद्दमात, परेशानियां, नाकामियां, कोई सख्तियां, कोई उलझने दे दी, और फिर वो उसमें अल्लाह से मांगने वाला, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाला और अल्लाह के सामने भिखारी बन जाने वाला है, तो समझ ले इस आजमाइश में मेरा अल्लाह मुझसे राजी है, मुझसे अपनी यादें नहीं छीनी। किसी अल्लाह वाले ने एक बात कही थी कि बाज़ औक़ात मेरा रब नाराज होकर, बाज़ औक़ात मेरा रब नाराज होकर बंदे से, नाराज होकर बंदे से लुक्मे नहीं छीनता, सजदे छीन लेता है। लुक्मे नहीं छीनता, सजदे छीन लेता है। सजदों से मुराद अपनी जात का ताल्लुक, तारुफ, अपनी तरफ उठने वाले कदम, जिक्र, तस्बीह, अल्लाह का ताल्लुक, रोजा, नमाज, तस्बीह, अल्लाह वो छीन लेता है। लुक्मे नहीं छीनता, माल दौलत नहीं छीनता। समझ ले कि वो बहुत बड़ी आजमाइश पे है, बहुत बड़ी आजमाइश में है वो बंदा जिससे अल्लाह ने लुक्मे नहीं छीन। या कहारों के अमल को पानी के साथ निस्बत इसलिए है, पानी के साथ निस्बत इसलिए है कि मेरे अल्लाह ने फैसला किया है कि इसको निस्बत पानी के साथ है। हमारे यहां जड़ी बूटियां होती हैं, कुल्लु मुर्रुन हारुन, अरबी का एक मकूला है, हर कड़वी चीज की तासीर गर्म होगी। कुल्लु हलून बारिदुन, हर मीठी चीज ठंडी होगी या मोतदल होगी। हमेशा वो जड़ी बूटी जो गर्म तासीर रखेगी, उसको अल्लाह पानी के किनारे उगाएगा। गर्म है, उसके अंदर आग है, तो उसे पानी चाहिए, अल्लाह उसे पानी के किनारे उगाएगा, पानी के किनारे उगाएगा। इस या कहारों के लिए पानी चाहिए, या आंसुओं का पानी चाहिए, या बहता पानी चाहिए, दोनों में से एक पानी लाजिम चाहिए। आंसुओं का पानी चाहिए। इसको पढ़ते हुए हमारी कैफियत में हम गिड़गिड़ा जाएं, हमारी हिचकियां हों और हमारा रोना हो, और हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक हो, हमारी अल्लाह के साथ निस्बत हो, और हमारा अल्लाह के साथ रुजू हो। ऐसा हो कि हमारी आंखों से आंसू बहें, आंसू बहें, इतना हो कि आंखों से आंसू बहें। अल्लाह पाक को ये रोना बहुत पसंद है। सारी चीजें, सारा कुछ, पर जो सबसे ज्यादा पसंद है, अल्लाह को रोना है, अल्लाह को रोना है। ये अल्लाह को पसंद है। मेरा अल्लाह कहता है मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, आंसुओं का पानी, रोना, रोना, रोना चाहिए मुझे।
औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने 50 साल से ज्यादा हुकूमत की। उस दौर के बड़े अजब वाकयात हैं, क्योंकि अल्लाह वाले दुर्वेश बादशाह थे, उनके दौर में बहुत वाकयात गुजरे हैं, और ऐसे वाकयात अनोखे हैं कि गुमान से बालतर है। एक दफा किसी ने उनसे ख्वाब में पूछा कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया गुजरा हो जो आपको मुतासिर किए बगैर। कहा, मेरी सारी जिंदगी इन्हीं वाकयात के साथ गुजरी है। तो पूछा, अच्छा चलो ये बताइए, आपको या कहारों का कोई फायदा हुआ? तो एकदम पहलू बदला। उस अल्लाह के बंदे ने, उस बादशाह ने पहलू बदला, और पहलू बदलने के बाद कहने लगे कि मैंने या कहारों को जंगों में, फितनों में, बगावतों में चढ़ाई, दुश्मन ने हमला कर दिया, और कहां कहां मैंने या कहारों को आजमाया भी है और पाया भी है। कहां कहां आजमाया भी है और पाया भी है, कहां कहां मैंने पाया है। तो कहने लगे, कोई आप अपनी जिंदगी के कुछ वाकयात हमें सुना दे। तो फरमाया, हाँ तुम्हें अपनी जिंदगी के वाकयात सुनाता। फरमाया, एक दफा मेरा लश्कर जा रहा था, और एक जगह पे मेरे हुकूमत में किसी बंदे ने बगावत कर ली थी, और कहा कि मैं आपको बादशाह नहीं मानता, यहां का बादशाह मैं हूं, और मैं उसकी सरकोबी करने जा रहा था। तो एक जगह मेरी पूरे लश्कर में बीमारी फूट पड़ी, कोई वबा वहां फूटी हुई थी। जब वबा फूटी हुई थी तो पूरे लश्कर में बीमारी थी। मेरे पूरे लश्कर में खारिश शुरू हो गई, फोड़े निकले, उन फोड़ों से पानी बहता था, और वो पानी जिसको लग जाता था उसको यही तकलीफ शुरू हो जाती थी। हत्ता के मेरे लश्कर के जानवर भी इसी बीमारी में मुब्तला हो गए, जानवर भी इसी बीमारी और तकलीफ में मुब्तला हो गए, जानवर भी। और जानवरों ने इसी बीमारी और तकलीफ को इतना कि जानवरों से फिर इंसानों को लगती थी, और इंसानों से जानवरों को लगती थी, जानवरों से इंसानों को लगती थी, और इंसानों से जानवरों को लगती थी। तकलीफ बढ़ते बढ़ते सारा लश्कर, हत्ता कि मैं खुद भी उस मर्ज में मुब्तला हो गया। और एक जगह कयाम था, हम आगे ना सा सके, ना पकाने वाला था, ना खिलाने वाला था, ना कोई पानी पिलाने वाला था, सब इस बीमारी में उल्टे पड़े हुए थे। तो कहा, मैं अल्लाह से गिड़गिड़ा रहा था कि अल्लाह, ये आजमाइश तूने भेजी है, हमारे गुनाहों की वजह से है, तुम माफ कर दे और इस आजमाइश को खत्म कर दे, कोई हमें रास्ता अता फरमा। अल्लाह, कोई अपने खजानों से कोई तरतीब अता। कहा कि 3 रातें मुसलसल मैं रोता रहा और मांगता रहा और रोता रहा और मांगता रहा, रोता रहा और मांगता रहा। कहा कि चौथी रात मुझे ख्वाब आया चौथी रात, और मैंने ख्वाब में देखा एक पूरी जमात है औलिया सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदों की, और उसमें एक बंदे ने आगे बढ़ के मुझे फूंक मारी, और मैंने अपने अंदर राहत महसूस की, सुकून महसूस किया। फिर उसने मेरे हाथ पे फूंक मारी, तो मेरे हाथ से खारिश भी खत्म हो गई, दाने भी खत्म हो गए, लेकिन हाथ के अलावा और जिस्म पे मौजूद थे। तो मैंने उससे कहा, मेरे पूरे बदन पे फूंक क्यों नहीं मार देते, मैं सेहत याब हो जाऊं। कहने लगे, तुझे इल्म नहीं है कि जब वबाएं फूटें, जब बीमारियां आए, पर दुख और तकलीफें ऐसी आए कि इंसान उसमें खत्म हो जाए, तो उस वक्त या कहारो पानी के साथ पढ़ो। तो मैंने उससे पूछा, पानी से मुराद? कहा कि या तो पानी के अंदर जिस्म के हिस्से डूबे हुए हों, अगर वो पानी डिबोए हुए हों, अगर वो पानी नहीं है तो फिर आंसुओं के पानी के साथ इसको पढ़ो। अपने पूरे लश्कर को कहो, फरमाया पूरे लश्कर को कहो कि आंसुओं के पानी के साथ या कहारों को पढ़े, आंसुओं के पानी के साथ या कहारों पढ़े, पूरे लश्कर को कहो आंसुओं के पानी के साथ या कहारों पढ़े। और कहने लगे कि मैंने बस उठ के सबको ऐलान कराया
کہ روو, गिड़गिड़ाओ, और बहुत ज्यादा रोवो, गिड़गिड़ाओ, और फिर या कहारो पढ़ो। तो कहा कि बादशाह का हुक्म था और मुसलसल मैंने बंदे निगरानी पे मुकर्रर किए कि जाके देखें इनमें से कौन है जो मेरी बात नहीं मान रहे और कौन है जो मेरी बात मान रहे हैं। कहा कि सिर्फ 5 दिन के अंदर मेरा पूरा लश्कर सेहत याब हो गया। हर बंदे के ऊपर से एक खोल उतरा, जिल्द का एक खोल उतरा, जिसे छिलका कहूं मैं, वो उतरा और नई जिल्द निकली। हर बंदा खूबसूरत हो गया और हर बंदा सेहतमंद हो गया। जानवरों के ऊपर से भी खोल उतरा। कहा जगह जगह खोल ऐसे पड़े थे, ऐसे नजर आ रहा था कि जले हुए इंसानों के ढेर लगे हुए, जले हुए इंसानों के ढेर लगे हुए हैं। खोल ऐसे पड़े थे, जिल्द के ऊपर से, जिस्म के ऊपर से उतरे, और मैं सेहत याब हो गया। और कहा जहां मेरा दुश्मन था, जहां मैं लश्कर लेके जा रहा था, वो दुश्मन खुश था। उसको इतलाएं मिल चुकी थी, उसके जासूसों ने दे दी थी कि ये सब बीमारियों में हैं और अनकरीब वहीं मर जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। और उन्होंने तरतीब बनाई थी कि जब ये मर जाएं और खत्म हो जाएं, इनकी माल दौलत, सोना, हीरे, जवाहरात लूटने की क्या तरतीब ऐसी बनाई जाए कि इनको लूटते हुए ये बीमारी हमें ना लगे। उन्हें उसके लिए तरतीब बना रखी थी कोई। लेकिन जब 5 दिन के बाद हम ठीक हो गए, हर बंदा सेहतमंद हो गया, तो हमने फिर अपना सफर शुरू किया। और सफर इतना तेजी से किया कि वो 5 दिन की कमी क्या, जैसे 10 दिन हम मरीज रहे, 10 दिन की कमी पूरी की। और 10 दिन की कमी पूरी करके ऐसे वक्त में अपने दुश्मन पे पहुंचे, वो तैयारी में नहीं था, वो मुतमईन था, और हमने उन पे शबखून मारा। अचानक वो कोई तैयारी में नहीं था, और बस थोड़ी ही देर में हम फातेह बन गए। कहा मैंने जिंदगी में जब भी वबाएं देखी, बीमारियां देखी, मैंने तो या कहारो पानी के साथ पढ़ा, या कहारो पानी के साथ। ये बहुत अहम नुक्ता है। या कहारो पढ़ना है पानी के साथ। मैंने या कहारो पानी के साथ पढ़ा, मेरे आंसू बहे, या फिर मैंने या कहारों के लिए पानी में पांव डिबोए। लेकिन याद रखिएगा, जो आंसुओं के साथ पढ़ा जाता है उसकी ताकत और होती है। क़यामत का दिन होगा, बंदे के बारे में हुक्म होगा कि इस काबिल नहीं कि इसको जन्नत में भेजा जाए, मैं कि उसको जहन्नम में घसीट के ले जाया जाएगा। आगे पहाड़ आ जाएगा जो उसको रोकेगा, और हर तरफ से पहाड़ होगा, फरिश्तों को आजिज़ कर देगा। मेरा रब बावजूद जानने के पूछेंगे क्या है, मैं अर्ज किया जाएगा या अल्लाह इसकी राहों में पहाड़। मैं कि एक दफा हमारे खौफ में ये रोया था और इसकी आंखों में आंसू नहीं आया था, इतना छोटा आंसू था कि इसकी पलकों में अटक गया था। इतना छोटा आंसू था कि इसकी पलकों में अटक गया था, इसकी पलकों में अटक गया था। बस वही आंसू इस वक्त पहाड़ बन के सामने आ गया है, वही आंसू पहाड़ बन के सामने आ गया है। कहता है या अल्लाह, दुनिया में ये तेरे शौक या तेरे खौफ से रोया था, दुनिया में तेरे खौफ से रोया था, आज इस पे जहन्नम किया तो वो पहाड़ बन के सामने आ गया। आंसुओं के पानी के साथ या कहारो पढ़ने वाले। एक अल्लाह वाले के पास एक बंदा आया, अर्ज किया कि हजरत मेरा हाथ पानी में हो तो उसमें आग और जलन नहीं होती, जब इस हाथ को मैं पानी से निकाल लूं तो मेरी चीखें जलन होती है। तो फरमाया कैसे? उन्होंने कहा मेरे पास एक मांगने वाला फकीर आता था, मांगने वाला एक फकीर आता था, मैं उस मांगने वाले फकीर को पैसे देता था, उसका मेरा ताल्लुक बन गया। फिर वो सारा दिन के मांगे हुए पैसे, रकम, अशरफियां, जो भी दिरहम दिनार मेरे पास रख के जाता था और फिर उठा के ले जाता था। ये सिलसिला चलते चलते अरसा हो गया।
तो एक दफा 2-3 दिन हुए वो नहीं आया। मैंने समझा शायद बीमार या क्या हुआ। मैं जहां वो अपनी मंजिल बताता था, कयाम बताता था, मैं उस कयाम को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो एक खंडर में उसका कयाम था। तो कहा, मैंने उसको सलाम किया तो वो पड़ा हुआ था जमीन पे, मौत और हयात की कश्मकश में। जमीन पे पड़ा था मौत और हयात की कश्मकश में। तो उसने मुझे देखा तो कहा, आ गए, अच्छा हुआ। मेरी वसीयत यह है कि मुझे इस माल दौलत से बहुत मोहब्बत है, तुमने मुझे दफन कफन करना है और ये मेरा माल चुपके से मेरी कब्र में रख देना है। मुझे इसकी से बहुत मोहब्बत है, मैंने दर बदर होके इसको कमाया है। तो मैंने कहा ठीक है। वो फौत हो गया, उसकी कब्र दफन और चुपके से उसका माल मैंने उसकी कब्र में रख दिया। वक्त गुजर गया। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास। एक वक्त आया कि मेरे ऊपर फक्र आया, गुर्बत आई, तंगदस्ती आए, फाके आए और हालात मेरे बहुत तल्ख हो गए, कड़वे हो गए। तो कहने लगा कि मैंने फिर सोचा एक दफा कि उस फकीर के पास जो मैंने माल रखवाया था उसके तो किसी काम का ना हुआ, उसके तो किसी काम का ना हुआ, उसके तो किसी काम का ना हुआ। उस माल का क्या करेगा वो? कहा कि क्यों ना मैं उसे निकाल के ले आऊं। रात को मैं गया, मैंने उसकी कब्र खोली तो उसकी हड्डियां पड़ी थी और उन हड्डियों के ऊपर सारे वो अशरफियां, माल, वो सारा लगा हुआ था, सारा, और सुर्ख था। तो कहा, मैंने जल्दी से एक अशरफी पे हाथ डाला तो आग थी, मेरा हाथ जला, एकदम मेरी चीख निकली। मैंने वो अशरफी वहीं छोड़ी, उसकी कब्र को उल्टा सीधा बंद किया। सारा माल उसकी हड्डियों पे चिपका हुआ था पूरा, और उनमें से हर माल अंगारा था। अब कहा कि मैं चीखता हुआ पानी में हाथ डाला तो मुझे सुकून मिला। अब आलम यह है कि अगर मैं पानी में हाथ डालता हूं तो मुझे सुकून मिलता है, और अगर पानी से हाथ निकालता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ, दर्द और चीखें निकलती हैं। आप कोई इसका हल बता सकते हैं? इसका कोई हल बता सकते हैं? तो हजरत ने फरमाया, ये जहन्नम की आग है। जहन्नम की आग को तो सिर्फ आंसू का पानी बुझा सकता है। जहन्नम की आग को तो सिर्फ आंसू का पानी बुझा सकता है, और कोई पानी नहीं बुझा सकता। आंसू का पानी बुझा सकता, इसके अलावा कोई पानी नहीं बुझा सकता। तो कहा कि अल्लाह का नाम लेकर रोवो और बहुत ज्यादा रोवो, और जो आंसू गिरे उसे गिरने ना दो। इस जले हुए हाथ पे जहां तकलीफ है यहां लगाओ ये आंसू, यहां लगाओ। और उसने ऐसे ही किया। कुछ अरसे के बाद अल्लाह के नेक बंदे की बारगाह में हाजिर हुआ कि ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, और मेरे उस जिस्म के हिस्से में अब तकलीफ खत्म है। तो फरमाया, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने अपनी जहन्नम की आग को, जिसका उसने ज़हूर दुनिया में किया था, दुनिया में उसकी तासीर और ताकत दिखाई थी, अल्लाह ने वो आग तुझ पे खत्म कर दी और आग को अल्लाह ने बुझा दिया। जहन्नम की आग, उसको तो सिर्फ आंसू बुझा सकते हैं। सोचने की बात है, जो आंसू जहन्नम की आग को बुझा सकते हैं, वो जादू की आग को, वो बंदिश की आग को, वो दुश्मन हासिद की आग को, वो कीना और बुग़्ज़ की आग को, वो नजर बद की और जिन्नात की आग को, क्या वो आंसू नहीं बुझा सकेंगे? जहन्नम की आग को बुझा दे। खुशकिस्मत इंसान है जिसको जिसको माल दौलत भी हो, जिसके पास चीजें भी हों, माल दौलत भी हो और चीजें भी हों, खुशकिस्मत है। और फिर उसको अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के लिए रोना नसीब हो जाए, अल्लाह के लिए रोना नसीब हो जाए। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह वो थे जो आज एक जोड़ा पहनते थे, कल नहीं पहनते थे। माल दौलत, चीजें, नेमतें बहुत ज्यादा थी, और एक जगह सिसकियां लेके बैठे रो रहे थे। तो किसी ने पूछा, आपके पास तो बहुत माल दौलत है, बड़े बड़े नवाब आपके मकरूज रहते हैं, आप रो रहे? फरमाया, छीनने के बाद,
چھیننے کے بعد، یعنی غربت، فقر، فاقے، مقروض ہونے کے بعد تو رونا سب کو آتا ہے۔ اصل مزہ یہ ہے کہ ہو اور رونا آ جائے، مال ہو، دولت ہو، نعمتیں ہوں، چیزیں ہوں، اور پھر رونا آ جائے۔ اصل تو یہ ہے، چھیننے کے بعد تو رونا سب کو آتا ہے۔ کیسا شخص ہوگا جو اللہ کی محبت میں اور اللہ کے تعلق میں اس کو رونا نصیب ہو جائے، اس کو رونا مل جائے، اور کیسا ہوگا جو یا کہاروں کا عمل کر رہا اور اس کے بعد اس کو رونا بھی ہے، 8 تسبیحاں 12 تسبیحاں پڑھ رہا اور پانی میں پاؤں ڈبوئے ہوئے ہیں اور پانی کے ساتھ پڑھ رہا، آنکھوں سے بھی پانی ہے، پاؤں پہ بھی پانی ہے، پانی کے ساتھ پڑھ رہا، اور اس کے اندر رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ کے نام میں ڈوب جانا ہے، اللہ کے نام میں کھو جانا ہے۔ میرے اللہ کو یہ ترتیب بہت پسند ہے، میرے اللہ کو یہ نظام بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اصل میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو یا کہارو پڑھتے ہیں اور اس کی کتنی تاثیر ملتی ہے، کتنی طاقت ملتی ہے۔ سوچیں، بعض تسبیحیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف 11 دفعہ پڑھی جاتی ہیں، بعض وظیفے، اور میں یہ جو بندہ 11 دفعہ پڑھ لے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کا نام 11 دفعہ پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ 1100 دفعہ جو پڑھے گا وہ اگر جذبوں سے، کیفیتوں سے، توجہات سے، طاقت سے پڑھے گا، کیا اس کو فائدہ نہیں ہوگا؟ کیا اس کو نفع نہیں ہوگا؟ کیسے ممکن ہے اس کو فائدہ نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے اس کو نفع نہ ہو؟ اللہ کا نام نفع دیے بغیر نہیں رہتا، اللہ کے نام میں تاثیر ہے، نفع ہے، فائدہ ہے۔ بعض اوقات میری آنکھیں نہیں دیکھتی اس نفع کو جو میرا اللہ مجھے دینا چاہ رہا، جبکہ اس میں نفع، فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے کچھ وقت ایسا نکالیں اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں کچھ وقت ایسا نکالیں جس میں رونا ہو، جس میں گڑ گڑانا ہو، جس میں صرف اللہ کے ساتھ تعلق میں کہ اللہ میں کیسا بدقسمت ہوں، تو نے میری آنکھوں سے آنسو چھین لیے، اپنے ذات عالی کے ساتھ، ذات عالی کے ساتھ تعلق چھین لیا۔ اللہ میں کیسا بدقسمت ہوں، تو نے میری آنکھوں سے وہ کیفیتیں چھین لی جو تجھے پسند ہے۔ کیوں؟ سارا زور تیرے پاس ہے اور ساری زاری، ساری عاجزی، سارا نیاز میرے پاس ہے، اور سارا ناز، ساری عظمت، سارا تکبر، سارا وقار اور ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں۔ جو تیرے پاس نہیں ہے وہ میرے پاس آ جائیں، میں تیرا بن جاؤں گا۔ اب اس لفظ کو پھر دہراؤں گا، توجہ سے سنیں۔ یا اللہ جو تیرے پاس نہیں ہے وہ میں اپنے پاس لے آؤں، میں تیرا بن جاؤں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بندہ گلیوں بازاروں میں آواز لگا رہا تھا، لوگوں امیر المومنین سے کہہ دو میرے پاس وہ ہے جو امیر المومنین کے رب کے پاس بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کیا یہ دعوے کرتا ہے؟ ہم نے تو آج تک یہ سنا ہے کہ ساری کائنات اللہ کے پاس ہے، ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، ہم نے تو یہ سنا ہے، ہم نے تو یہ سنا ہے۔ اور وہ کہتا ہے نہیں۔ تو اس کو جب بلایا اور اس سے پوچھا، کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میرے اللہ کے پاس وہ نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ میرے اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے، میرے پاس عاجزی ہے۔ میرے اللہ کے پاس تواضع نہیں ہے، میرے پاس تواضع ہے۔ میرے اللہ کے پاس نیاز نہیں ہے، میرے پاس نیاز ہے، جھکنا ہے، چھوٹا پن ہے۔ میرا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، میرا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اپنی زندگی میں کچھ ذکر ایسے کریں، کچھ تسبیح ایسے کریں۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں 7ویں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، 7ویں 8ویں جماعت میں نے ایک صاحب کو دیکھا، مصلی میں بہت روتا تھا وہ بندہ۔ نماز ہو جاتی تھی، بقیہ نماز پڑھ لیتا تھا، پھر دونوں ہاتھ ایسے اوپر کر کے مصلی میں سجدے میں چلا جاتا تھا، بہت روتا تھا۔ ہمیشہ مسجد کا کوئی ایک کونا علیحدہ تلاش کرتا تھا جہاں اس کی سسکیوں کو کوئی نہ دیکھے، اس کے رونے کو کوئی نہ سنے، اس کے بلکنے کو، اس کے سسکنے کو کوئی نہ دیکھے۔
हमेशा एक कोना तलाश करता था, एक कोना तलाश करता था, कोई ना सुने, कोई ना देखे, हमेशा एक कोना तलाश कर। अच्छा, मैं भी उसकी तलाश में होता था। पता नहीं क्यों उसका रोना मुझे अच्छा लगता था, और मैं कहता था अल्लाह ऐसा रोना मुझे भी अता कर। वो मुझसे उम्र में बहुत सारा बड़ा था, कोई 10-12 साल का तकरीबन फर्क था। वो रोता था। मैंने एक दफा किसी से पूछा, मैं कहा ये क्यों रोता है, तो हंस पड़ा। मुझे उसकी हंसी से तकलीफ हुई। मैं कहा देखो वो अल्लाह की ताल्लुक, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की इश्क में रोता है, और ये हंस पड़ा। मुझे उसके हंसने से तसल्ली ना हुई। मैंने उसके करीब एक और से पूछा, मैंने कहा ये क्यों रोता है, तो उसने कहा तुझे क्या गम है। मैंने कहा मुझे इस पे तरस आता है, कि इसकी शादी करा दे जहां ये करना चाहता है। अच्छा, अच्छा अच्छा, अब समझ आई। मैंने कहा, वो कह के चला गया, पर उसका रोना मुझे आज भी याद है। ओह अल्लाह अल्लाह, ऐसा सिसकता बिलकता था, चटाई दरिया तर हो जाती थी, तर हो जाती थी। उसकी तलब, उसकी तड़प, और उसका जज्बा, और उसका आशिकाना वालेहाना अंदाज, आज भी मेरे अंदर उसकी एक कसक मौजूद है कि मुझे ये रोना नसीब हो जाए। मुझे रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना, ये मुझे नसीब हो जाए, मुझे नसीब हो जाए। मैं जेल में जो बंदे वक्त गुजार के आते हैं, मैंने उनसे कई दफा कुछ चीजें पूछी, या जेल में जो बंदे सरकारी मुलाजमत करते हैं, मैंने उनसे भी बहुत से अहवाल पूछे। चंद बार मेरा जेल में जाना हुआ, कुछ मेरे दस्त थे, मैंने वहां वो देखे भी सही। उन सब का कहना यही है, सबसे ज्यादा रोना, सिसकना, बिलकना, तड़पना जेल में होता है, जेल में होता है। सबसे ज्यादा रोना, सिसकना, बिलकना, तहज्जुद, तस्बीह, लंबे सजदे, लंबी दुआएं, लंबी दुआएं तो जेल में होती हैं। मुझे कई कई बंदों ने बताया, कई बंदों ने बताया। मैंने उनसे बाकायदा सवाल किया, मैंने सीखने के लिए सवाल किया, कई बंदों ने बताया, और ये हकीकत है। मेरा अल्लाह चाहे हमें जेल न भेजे, अल्लाह आफियत फरमा दे, हम इस काबिल नहीं हैं आजमाइशों के, तो उससे पहले यही रोने की कोई तरतीब बनाए, रोने की तरतीब बनाए, और रोने के मिजाज को अपनी तन्हाइयों में दाखिल करें। और कुछ लम्हे ऐसे हों कि हम या कहारों को आंसुओं के पानी के साथ पढ़ें। कुछ लम्हे ऐसे हों हम या कहारों को आंसुओं के पानी के साथ पढ़ें, आंसुओं के पानी के साथ।